हेलो स्टूडेंट, दिस इज योर फिजिक्स टीचर। आज हम लोग जो चैप्टर पढ़ने वाले हैं उसके रिवीजन करने वाले हैं। उसका नाम है डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर्स। ठीक है। सो फ्रॉम द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू एंड ऑल्सो those who are very much weak and they actually try to avoid the mathematical derivation, I will say that this chapter is a boon for you. There are a number of graphs over there, and number of questions used to come from the graph. The simple derivation. Okay? Derivation actually it's not can be it cannot be called derivation. It's simple mathematical equation that comes in the examination. Only just you need to memorize it and just write it down. So let's start. यहाँ पर आप देख लो, आपका जो है यहाँ पर जो सिलेबस जो है वो यहाँ दिया हुआ है। तो पहले में क्या आता है, डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन। ठीक है, फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट, हर्जन लॉरेंज Lenard observation, Einstein photoelectric equation, particle nature of light, experimental study of the photoelectric effect, matter waves, wave nature of the particle and de Broglie relation. तो ये हमको पढ़नी है, तो one by one we will go for it. Those which are very much important and often comes in the CBSE board examination, we will first cover those questions. ठीक है। तो सबसे पहले है व्हाट इज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। यू नो इट वेरी वेल that there are certain elements, certain metals on which if a suitable frequency radiation is made incident on that metal, suddenly the electrons are coming out from the surface. The effect is called photoelectric effect. फोटो जो है का मतलब होता है लाइट। ठीक है। और इलेक्ट्रिक आप जानते ही हो, इट्स ए फ्लो ऑफ चार्ज। So in this experiment, the electrons comes out, and they know that electrons are charged, and when electrons is moving from one point to another point, or you can say that there is a flow of electron, then it can be considered to be a current electricity. This is why the the photons, okay, sorry, the फोटो जनरेटर जो इलेक्ट्रॉन्स है उनको हम लोग फोटो इलेक्ट्रॉन्स बोलते हैं। ठीक है। नेक्स्ट, दिस इज द एक्सपेरिमेंटल सेटअप। आप इसको थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लीजिए। इसमें ये वाला जो है ये कैथोड है, और ये पोर्शन जो है ये क्या है, ये आपका जो कलेक्टर प्लेट है या एनोड प्लेट बोल सकते हैं इसको आप। ठीक है। नाउ जनरली एनोड इज मेड पॉजिटिव, बट हेयर वी विल मेक इट नेगेटिव with respect to this cathode plate, so that all the electrons will reach over there, so that all the electrons will not be able to reach over there. ठीक है। और एक समय आएगा जब हम इसकी नेगेटिव पोटेंशियल को जब बढ़ाते जाएंगे, नो इलेक्ट्रॉन विल बी एबल टू रीच टू द दिस एनोड प्लेट, एंड दैट पोटेंशियल, the minimum potential of the collector plate for which there is no electrons coming from the cathode to the anode plate, that negative potential is known as stopping potential. तो स्टॉपिंग पोटेंशियल का डिफिनेशन भी आती है, सेटअप भी आप थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा इसको। और याद रखिएगा कि यहाँ जो इलेक्ट्रॉन निकल रही है वो जिसकी सबसे ज्यादा काइनेटिक एनर्जी है वो वहां नहीं पहुंच पा रहा है कलेक्टर प्लेट पे। कलेक्टर प्लेट को कलेक्टर प्लेट इसलिए बोलते हैं बिकॉज इट कलेक्ट्स द इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, कमिंग फ्रॉम द कैथोड। एक और क्वेश्चन आती है जो ग्राफिकल है, इफेक्ट ऑफ इंटेंसिटी ऑफ लाइट ऑन द फोटोइलेक्ट्रिक करंट। क्या क्या इफेक्ट है भैया? तो रिमेंबर दिस थिंग्स दैट इंटेंसिटी एंड फोटो करंट को मैं यहाँ पर आईपी लिख देता हूँ और इंटेंसिटी को सिंपली आई बोलता हूँ। सो इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। मोर intensity means number of photons hitting the surface per unit time um, will be more if the intensity is more, and large number of electrons on the metal surface, they will catch the photon, and after absorbing it, if the frequency is more than the suitable frequency, then they will come out from the surface, and so the photoelectric effect जो होती है is generated. तो यहाँ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। लेकिन रिमेंबर यहाँ ये याद रखना होगा कि एक सर्टेन फ्रिक्वेंसी है, एक सर्टेन सुटेबल फ्रिक्वेंसी है, जिसको मान लो आपने यहाँ पर न्यू नॉट बोल दिया, ये और एक नाम से जाना जाता है थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी।
थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से जो होती है उसकी वैल्यू ज़्यादा होना चाहिए, अदरवाइज द काइनेटिक एनर्जी विल बिकम नेगेटिव। और काइनेटिक एनर्जी नेगेटिव हो नहीं सकती, इसका मतलब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हमको देखने को नहीं मिलेगी। सो दिस इज अ ग्राफ, सी वेरिएशन ऑफ द फोटो इलेक्ट्रिक करंट विद एनोड पोटेंशियल। ऑफ कोर्स आपको पता ही है कि एनोड का पोटेंशियल अगर पॉजिटिव कर देते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स वहाँ पहुँचेगा, और एक समय आएगा सारा का सारा इलेक्ट्रॉन जो सेटअप से निकला हुआ है, मतलब ये कैथोड प्लेट है और ये आपका एनोड प्लेट है, दिस इज कैथोड एंड दिस इज एनोड प्लेट। तो जो भी इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, 100 इलेक्ट्रॉन निकल रहा है मान लो, तो सारा का सारा यहाँ पहुँचेगा। So this way we will get a saturation in the value of current, and this is why we are finding that the graph has become somewhat parallel to the x-axis, that is the anode potential जो axis है उसके parallel हो जाता है। Now the current is not no longer increasing, क्योंकि भाई ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो इमिट होता है पर सेकंड वो तो फिक्स है ना, वो तो इंटेंसिटी पे डिपेंड करता है। बट सी हियर देयर आर थ्री इंटेंसिटी ओवर हियर, थ्री फोटो इलेक्ट्रिक करंट यहाँ पर देखने को मिल रही है बिकॉज ऑफ द थ्री डिफरेंट डिफरेंट इंटेंसिटी। ज़्यादा इंटेंसिटी वाला ऊपर से जा रहा है, जो कम इंटेंसिटी से नीचे से जा रहा है, और सबसे कम वाला जो होता है वो और सबसे नीचे से जा रहा है। लेकिन इन सबका देखो जो नेगेटिव पोटेंशियल है, जिस पर जो है हमारा फोटो करंट बिकम जीरो हो जाता है, वो सेम है। इसका मतलब क्या है, इन सब की फ्रीक्वेंसी सेम है बट डिफरेंट इंटेंसिटी है। ठीक है, अच्छा ये हो गया हमारा। तो यहाँ ठीक इसका जस्ट अपोजिट केस है, यहाँ पर आपका जो है इंटेंसिटी सेम हो जा रहा है लेकिन फ्रीक्वेंसी अलग अलग है। और सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी या सबसे ज़्यादा वर्क फंक्शन या सबसे ज़्यादा स्टॉपिंग पोटेंशियल जो होती है वो इसकी होती है, इस वाली ए कर्व की होती है जो सबसे लास्ट में जा रही है। एक और कर्व आती है जिसमें हम लोग स्टॉपिंग पोटेंशियल फ्रीक्वेंसी के साथ हम लोग प्लॉट करते हैं। फ्रीक्वेंसी इज प्लॉटेड अलोंग द एक्स एक्सिस एंड पोटेंशियल इज प्लॉटेड अलोंग द वाई एक्सिस। अब इसमें देखो क्या होता है, इसमें देखो ये कर्व जो है ये मतलब ओरिजिन को कट नहीं कर रहा है, ये किसी पहले ही कुछ एक जगह पर कट कर रही है। और जब हम इसको पीछे बढ़ाते हैं तो ये क्या होता है, कहीं पर एक नेगेटिव स्टॉपिंग पोटेंशियल पर कट कर रही है। और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि यू नो दैट फॉर डिफरेंट डिफरेंट मेटल डिफरेंट डिफरेंट हैव दे डिफरेंट हैव द there will be different threshold frequency, and so we are finding that this one ठीक है is having the higher value of frequency, so the stopping potential will also be more, because the stopping potential is directly proportional to the stopping potential को मैं VP लिख देता हूँ, V लिख देता हूँ, VS लिख देता हूँ, सॉरी, VS is directly proportional to frequency, फ्रीक्वेंसी म्यू। ठीक है, फ्रीक्वेंसी इसके प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, तो भैया ये सुटेबल फ्रीक्वेंसी से कम होगा तो रेडिएशन होगा ही नहीं, इसीलिए यहाँ पर ये किसी एक सर्टेन वैल्यू के बाद से ये स्टार्ट होती है, और यहाँ से यहाँ तक जो वैल्यू होगी फ्रीक्वेंसी की वो हो जाएगा आपका थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। ज़्यादा होने से कोई दिक्कत नहीं है, कम नहीं होना चाहिए, कम होने से आपका कर्व जो है नहीं बनेगा। नाउ नेक्स्ट द इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इज लॉज ऑफ फोटोइलेक्ट्रिक इमिशन। क्या क्या लॉज है थोड़ा सा पढ़ते हैं इसके बारे में। कैन आई मेक इट समवhat larger so that I think it is not possible. कोई बात नहीं है। हम्म, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। क्या क्या लॉ है इसमें, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल द फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन मस्ट बी मोर देन द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, otherwise photo electric effect will not be observed, for there will be no photoelectric current. एक्चुअली फोटो इलेक्ट्रिक करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी, शुरुआत में मैंने बताया ही था। मान लीजिए आपका जो ये फोटो करंट है ये डायरेक्टली इंटेंसिटी के प्रोपोर्शनल होता है, लेकिन सुटेबल वाला फ्रीक्वेंसी तो कंडीशन है, उससे ज़्यादा होने से
इलेक्ट्रॉन निकलेगा, फोटोइलेक्ट्रिक देखने को मिलेगी, उससे कम होने से नहीं मिलेगी, उससे कम होने से फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट होगी ही नहीं। ठीक है, तो एक कट ऑफ फ्रिक्वेंसी चाहिए। पहला वाला दूसरा पॉइंट सब एक ही चीज बोला हुआ है। पहला वाला सिंपली बोला है कि इंटेंसिटी जो होती है वो आपका डायरेक्टली फोटो करंट के प्रोपोर्शनल होती है। अब देखो थर्ड क्या बोला है कि अगर ज़्यादा फ्रिक्वेंसी करते हैं अबव द थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी, तब वहाँ पर क्या होती है कि जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी जो होती है फोटो इलेक्ट्रॉन की, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है फ्रिक्वेंसी का। एक्चुअली लेट मी राइट द आइंस्टाइन इक्वेशन। द एनर्जी ऑफ द फोटोन इज गिवन बाय एच न्यू, वेयर एच इज द प्लैंक कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू 6.6 इंटू 10⁻³ जूल सेकेंड होती है, और न्यू जो फ्रिक्वेंसी है। तो ये दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है। द फर्स्ट पार्ट एक्चुअली ओवरकम्स द first part is used to overcome the attraction force that attracts the electrons, and it frees the electrons from the bonding. And the second part जो surplus amount of energy होता है that is given to the electrons। ठीक है, और यहाँ पर जो जो उनकी एनर्जी जो होती है वो काइनेटिक एनर्जी जो कन्वर्ट होती है, तो द फॉर्मूला बिकम्स लाइक दिस। ये मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी होती है इलेक्ट्रॉन की। एक और चीज़ है, सबसे लास्ट प्रॉपर्टी है कि प्रोसेस इज इंस्टेंटेनियस, देयर इज नो टाइम लैग। एक्चुअली टाइम लैग होती है, बहुत बहुत स्मॉल होती है, दिस इज 10⁻⁹ सेकेंड। सो I think definitely it is very much less. So we can say that the process is instantaneous. The moment the radiation is made incident on the surface, the moment the radiation is made incident on the surface, ठीक है, the electrons start coming out from the surface normally from the surface। ठीक है, तो ये हो गया। अब नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 7। एक्सप्लेन व्हाई फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट कैन नॉट बी एक्सप्लेन ऑन द बेसिस ऑफ वेव नेचर ऑफ लाइट। तो वेव नेचर के अनुसार से आप दो तीन चीजें याद रखो। पहली बात तो ये कि जो है यहाँ पर जो हम बात करते हैं, ठीक है, कि एक सर्टेन फ्रिक्वेंसी की यहाँ जरूरत है, थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी, उससे ज़्यादा का फ्रिक्वेंसी का रेडिएशन ही जो है थ्रेशोल्ड फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को अंजाम देगा। लेकिन अगर वेव थ्योरी की बात माने तो वेव थ्योरी में ऐसा नहीं होता, वहां पर किसी भी फ्रिक्वेंसी से ये काम चल सकती थी। दूसरा, वेव थ्योरी जो होती है ये भी बताती है कि इंटेंसिटी जो होती है वो, आप हम लोग पढ़े ना, इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोटो इलेक्ट्रिक करंट। तो ये भी बात नहीं होती, प्रोपोर्शनल नहीं होती। थर्ड, कुछ तो टाइम लगता, ठीक है, there will be some time lag, ठीक है, but here experimentally we have found that the process is instantaneous। तो instantaneous तो नहीं होना चाहिए। तो ये जो instantaneous जो बात लिखा हुआ है ये देखा जाता, ऑब्जर्व किया जाता, लेकिन वेव थ्योरी अगर ये सच्ची होती, जो इसमें एप्लीकेबल होती, तो डेफिनेटली ये इंस्टेंटेनियस नहीं होता, थोड़ा सा टाइम लगता। और याद रखिएगा कि काइनेटिक एनर्जी जो होती है, जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी जो होती है, वो हमको प्रोपोर्शनली देखने को मिलता है किसको, फ्रिक्वेंसी के। तो यहाँ पर वेव थ्योरी के अनुसार वो इंटेंसिटी पर डिपेंड होना चाहिए था, लेकिन ऐसा देखने को नहीं मिलता है। इंटेंसिटी और काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन, फोटो इलेक्ट्रॉन सॉरी, इज नॉट डिपेंडेंट ऑन ईच अदर एट ऑल। एक दूसरे पर डिपेंड करते ही नहीं है, ठीक है। कौन कौन, काइनेटिक एनर्जी, और दूसरा काइनेटिक एनर्जी किसका, ऑफ द फोटो इलेक्ट्रॉन्स, और दूसरा जो है आपका जो है इंटेंसिटी। इंटेंसिटी मतलब होता है इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन, द नंबर ऑफ फोटोन हिटिंग द सरफेस पर सेकेंड, ठीक है, इज नोन एज इंटेंसिटी। ठीक है, अब यहाँ पर उसी का एक्सप्लेनेशन दिया हुआ कैसे कैसे क्या हो रहा है। अब देखो ये इंसिडेंट फोटोन है जिसकी वैल्यू कितनी, एच न्यू है, एच न्यू, और ये सरफेस है। जनरली द सरफेस इज मेटल। You know that metal contains copious, metal contains a huge number of free electrons. So these electrons they come out from the surface, ठीक है। The electrons which are very much inside the metallic surface, they are not able to come out because they need more amount of energy।
तो जो सरफेस के ऊपर में जो इलेक्ट्रॉन होता है उनको कम एनर्जी मिल जाएगा तो भी वो क्या करते हैं, वो बाहर निकल जाते हैं। And this energy is divided into two parts, kinetic energy and half mv square. And this half mv square is written like this, half mv max square. ठीक है, दोनों एक जैसा नहीं है, यहाँ पर मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी की बात की जा रही है। तो ये सब है, कैरेक्टरिस्टिक है, और ये आपका इक्वेशन है। एग्जाम में आपका ये इक्वेशन लिखने के लिए बोला जा सकता है, पढ़ लीजिएगा इसको, ठीक है। अच्छा, बेसिक फीचर्स ऑफ द फोटोन, तो आप बेसिक फीचर्स में ये बोल दो, द फोटोन इज डिस्क्रीट पार्टिकल्स एंड द एनर्जी इज इक्वल टू एच न्यू। और भी आप बोल सकते हो कि द वेलोसिटी ऑफ द फोटोन इज सी, सी मतलब होता है 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ठीक है, आप बोल सकते हो दैट इज द वेलोसिटी ऑफ द लाइट। अच्छा, a number of things has been written, photons are electrically neutral होता है, वो इलेक्ट्रिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड के जरिए डिफ्लेक्ट नहीं होती है, ठीक है। Yes, definitely the photon has momentum. Sometimes the question comes as the velocity of the photon is c, so we can write the momentum is equal to mc. अब mc तो लिख दिया, अब देखो ध्यान से, ये mc जो है स्क्वायर जो होती है, ये एनर्जी होती है एच न्यू के बराबर, ठीक है। नाउ दिस इज द आइंस्टाइन मास एनर्जी इक्विवेलेंस रिलेशन से ये चीज आई हुई है। अभी एम सी स्क्वायर को मैं दो पार्ट में लिख देता हूँ, एम सी इंटू सी लिख देता हूँ, एच न्यू। नाउ दिस एम सी विल बी इक्वल टू एच न्यू बाई सी आ जाएगा, यही तो लिखा है यहाँ पर, एच न्यू बाई सी, ठीक है। अब यहाँ पर न्यू बाई सी जो होती है वो लैम्डा होती है, न्यू बाई सी इज इक्वल टू 1 बाई लैम्डा होती है। तो जस्ट पुट किया तो यहाँ पर देखो क्या निकल गया, एच बाई लैम्डा। दिस रिलेशन इज एक्चुअली नोन एज डी ब्रॉली रिलेशन, डी ब्रॉली रिलेशन। तो एग्जाम में छोटा सा आता है डी ब्रॉली रिलेशन, और कभी कभी इस पर सवाल रिपीट आती है। देखो यहाँ मोमेंटम जो है लैम्डा के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, याद रखिएगा, मोमेंटम पी को मोमेंटम बोलते हैं, दिस इज प्रोपोर्शनल टू 1 बाई लैम्डा। एक ये सवाल आती है कि जो आपने अगर स्टॉपिंग पोटेंशियल और फ्रीक्वेंसी को प्लॉट किया, तो ये तो ग्राफ में ली, ये जहाँ पर कट करती है, जो छोटा सा इंटरसेप्ट बनता है यहाँ से ओरिजिन से, ये होती है माइनस ओमेगा नॉट बाई ए। ये ओमेगा नॉट जो होती है दैट इज नोन एज थ्रेशोल्ड एनर्जी। और इसकी स्लोप अगर निकालने जाओगे तो स्लोप जो होगी इसकी होगी एच बाई ई, एच इज द प्लैंक कांस्टेंट। समटाइम्स 1 मार्क्स क्वेश्चन विल कम दैट व्हाट इज द स्लोप ऑफ इट, आपको पता होना चाहिए इसकी स्लोप होती है एच बाई ई। कैसे आया ये, तो हमने जस्ट वैल्यू पुट करना शुरू किया, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी एच न्यू माइनस ओमेगा नॉट, दिस इज द जस्ट रीअरेंजमेंट ऑफ द आइंस्टाइन फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन, थोड़ा सा हमने इसको रीअरेंज किया। अच्छा, एक फॉर्मूला है, आप जानते हो कि नहीं जानते हो, इलेक्ट्रोस्टैटिक में पढ़ा था, क्यू भी इज इक्वल टू क्या होता, दैट इज द एनर्जी। एनर्जी को हम लोग यहाँ पर हाफ एम बी स्क्वायर लिख दे रहे हैं क्योंकि यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी की बात की जा रही है। अब क्यू क्यू नहीं है, क्यू की जगह पर हम इलेक्ट्रॉनिक चार्ज लिख देते हैं, और भी जो है वी एस है स्टॉपिंग पोटेंशियल। सो रिमेंबर दिस थिंग, हाफ एम भी मैक्स का स्क्वायर जो होती है ये ई वी एस के बराबर होती है। तो जस्ट इसको पुट कर दिए, यहाँ वी एस नहीं लिखा, यहाँ वी नॉट लिख दिया। So you are getting this relation from here, just try to find out the थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। देखो ये वाला जो चीज है, और ये आपका स्टैंडर्ड इक्वेशन है, इसमें देखो m की जगह पर क्या है, h बाई ई आया है, और ये m को ही हम लोग बोलते हैं स्लोप, स्लोप इज इक्वल टू कितना है, h बाई ई, ठीक है। और स्ट्रेट लाइन का जो स्टैंडर्ड इक्वेशन है वो होता है y इज इक्वल टू mx प्लस सी। सो यू विल नो इट मोर डिटेल, थोड़ा सा आप स्ट्रेट लाइन y इज इक्वल टू mx प्लस सी देख लीजिएगा, ठीक है। मैं इसको यहाँ पर ड्रॉ करने की कोशिश करता हूँ, दिस इज इक्वल टू y इज इक्वल टू mx प्लस सी, जिसमें से ये जो पार्ट होती है वो c होती है, और ये स्लोप है थीटा। थीटा जो है यहाँ पर tan थीटा की बात की जा रही है, tan थीटा इज इक्वल टू आपका स्लोप होती है, और स्लोप यहाँ पर हम लोग कौन से सिंबल से लिख रहे हैं, स्मॉल m से लिख रहे हैं। सो नाउ हेयर देयर नंबर ऑफ फार्मूला, नंबर ऑफ इमिटेड पर सेकेंड इज इक्वल टू पी बाई ई वगैरह वगैरह है, फोटोन का ये वैल्यू होती है एनर्जी का। वर्क फंक्शन क्या होता है, अच्छा, वर्क फंक्शन इज द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी टू रिमूव द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द मेटल सरफेस by the incident radiation
विदाउट गिविंग एनी काइनेटिक एनर्जी टू इट। मतलब हमारा फॉर्मूला में तो हमको पता है ना, एच न्यू इज इक्वल टू क्या होता है आपका ओमेगा नॉट प्लस हाफ एम बी स्क्वायर। तो अगर मैं यहाँ पर हाफ एम बी स्क्वायर को पार्ट को अगर जीरो कर दूंगा तो यहाँ पर एच न्यू जो होगा वो ओमेगा नॉट के बराबर हो जाता है। So this is the minimum amount of energy required by the metallic surface so that there will be electronic emission, but that will be without giving any kinetic energy to it. तो सेम है। अब यहाँ पर ओमेगा नॉट को भी चाहे तो हम दो पार्ट में लिख सकते हैं, एच न्यू नॉट लिख सकते हैं हम लोग, ठीक है। सो दिस फार्मूला इज वेरी मच कॉमन इन द एग्जामिनेशन, इसको आप पढ़ लीजिएगा, प्रैक्टिस कर लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये सिंपल सा क्वेश्चन है, व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ ए फोटोन हुज एनर्जी इज दिस। सीधा सा बात है, एच न्यू को हम लोग एनर्जी बोलते हैं, और एच न्यू जो होगा वो एनर्जी ई के बराबर होगा। ई का वैल्यू दिया हुआ है यहाँ पर 66.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दिया हुआ है ना। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो होती है वो होती है आपका 1.6 into 10 to the power minus 19 joule. This is the energy gained by the electron when the electron is passing through a potential difference of 1 volt. 1 वोल्ट को अगर वो क्रॉस करती है किसी दो पॉइंट का बीच का, अगर 1 वोल्ट का डिफरेंस है पोटेंशियल का, तो इलेक्ट्रॉन जितना एनर्जी लॉस करेगा या गेन करेगा वो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है, उसकी वैल्यू ये होती है। तो यहाँ पर कितना है 66.3, तो इसको मैं यहाँ पर इलेक्ट्रॉन वोल्ट को फिर जूल में कन्वर्ट करूंगा 1.6 इंटू 10⁻⁹ से मल्टीप्लाई करके। तो अब देखो ध्यान से, यहाँ पर मल्टीप्लाई हुआ है ऊपर में नोमिनेटर में, बाकी सब वैल्यू पुट किए गए हैं, प्लैंक कांस्टेंट का वैल्यू पुट किया गया 6.6 इंटू 10⁻34, यू विल गेट दिस आंसर, ठीक है। आंसर कैसे आया, कैलकुलेशन क्या है, ये आप थोड़ा सा अपने से पढ़ लो, ठीक है। तो लॉट्स ऑफ थिंग्स आर देयर, आप ये वाला भी फॉर्मूला आप थोड़ा पढ़ लीजिएगा, आई विल से दिस वन, ठीक है। P इज इक्वल टू रूट ओवर 2m EV, ठीक है। तो मोमेंटम के साथ में पोटेंशियल का, ये पोटेंशियल है, कैपिटल भी जो है ये पोटेंशियल है, इसके स्क्वायर रूट का डायरेक्टली एक दूसरे के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। और यहाँ पर लैम्डा जो होती है वो 1/√भी होती है। तो अगर बाई चांस अगर बोल दिया लैम्डा के साथ में √भी का ग्राफ प्लॉट करो तो ये ऐसा होगा, और लैम्डा के साथ में अगर 1/√भी का ग्राफ प्लॉट करने को बोला तो ऐसा होगा। सो देयर नंबर ऑफ थिंग्स, ठीक है। कुछ प्रैक्टिस करने के लिए भी प्रॉब्लम दिया गया है, प्रैक्टिस कर लीजिएगा। ये ग्राफ मैंने ऑलरेडी बताया है, इतना कर लीजिएगा तो बहुत है, इनफ है। ये क्वेश्चन आती है ये वाला, ये प्रोटॉन और एक अल्फा पार्टिकल है, दोनों को सेम पोटेंशियल में हमने से गुजारा, उसको एक्सेलरेट किया। तो प्रोटॉन पे जो चार्ज होती है वो एक ही होती है, लेकिन अल्फा पार्टिकल पर चार्ज होता है, अल्फा पार्टिकल में लिख रहा हूँ तो He++, और उसका फुल फॉर्मूला होता है 2He4। इस पे चार्ज होती है वो दो चार्ज होती है, लेकिन जबकि प्रोटॉन पर एक ही चार्ज होती है। अब क्या बोला है कि किस में डी ब्रॉली जो वेवलेंथ होगी वो ज़्यादा होगी। तो डी ब्रॉली वेवलेंथ का फॉर्मूला ये होता है लैम्डा इज इक्वल टू h/p, और p का वैल्यू जो होती है वो होती है √2m। अगर मान लो कि चार्ज है q तो ये b हो जाएगा। तो ये आपका फॉर्मूला हो गया लैम्डा का, ठीक है। तो जब इसमें आप पुट करोगे तो आप पाओगे कि लैम्डा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू √1/m³। अच्छा, प्रोटॉन के मास को 1 मान लीजिए और इसके चार्ज को भी 1 मान लीजिए, लेकिन अल्फा पार्टिकल के मास को जो है आपको लिखना होगा, कितना है इसका मास नंबर 4 है, तो 4 लिखना होगा, 4 यूनिट लिखना होगा, और इसका चार्ज भी कितना है 2 है। तो anyway putting all these things will get this one. So of course this is more than 1, so definitely lambda p is more than lambda alpha। तो प्रोटॉन का वेवलेंथ ज़्यादा होगा अल्फा पार्टिकल से। सिमिलरली वी कैन ऑल्सो गो फॉर इट काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी जो फॉर्मूला होती है वो क्यू भी के बराबर होती है, जिसमें ज़्यादा चार्ज उसका ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी। चार्ज तो अल्फा पार्टिकल में ज़्यादा है, तो अल्फा पार्टिकल के लिए हम लोग कर सकते हैं, बोल सकते हैं कि अल्फा पार्टिकल की जो है काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होती है। सो अप टू दिस मच। अच्छा, ये प्रॉब्लम भी अच्छी है,
ये देखो, सी है lambda and 1 by root over v, when it is plotted it is passing through the origin. I told you little bit earlier. तो यू आर फाइंडिंग ओवर हियर, यहाँ पर दो कर्व आ रही है, दोनों का अलग अलग स्लोप है, किसी का ज़्यादा है किसी का कम स्लोप है, ठीक है। तो ये याद रखिएगा कि यहाँ जो स्लोप जो होती है वो रूट ओवर एम के बराबर होती है, 1/√m के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। तो जिसका स्लोप ज़्यादा होगा उसका मास कम होगा, और जिसका स्लोप कम होगा उसका मास ज़्यादा होगा। यही रिलेशन है, ठीक है। स्लोप उल्टा काम करेगा, मास के अपोजिट काम करेगा। So that way you can easily find out which graph is actually showing the higher masses and which graph is showing the smaller masses. तो smaller masses के अनुसार से उसकी जो स्लोप होनी चाहिए ज़्यादा होना चाहिए, तो ये वाला आपका ग्राफ होगा, ग्राफ नंबर बी, ठीक है। That's all so far. Thank you and have a nice day. Complete करिए and best of luck.